Hello everyone, welcome back to the channel. So this is a third video in the series of Matter in Our Surroundings, which is the first chapter of 9th standard. In the earlier two videos, we have talked in detail about what is matter, the different constituents of matter by the Indian philosophers, the physical nature of matter, is it continuous or particulate, we found out. We also discussed about the different sizes of the size of the particles and the major three characteristics of particles, and we also went in detail about what is kinetic energy, or what is the role of diffusion in these particles, how does it play an important role in mixing the two particles of different substances, and particles of matter do attract each other. We talked in detail about a lot of things in the first two videos, so please do go back to understand the different parts of the first chapter, right? So this chapter in particular, or this part basically, is part 3, and it is going to talk in detail about the states of matter, right? So it's a very easy topic. It's going to be a very short video to understand the 3 states of matter. So very precisely, I have a table which is talking about the 3 states of matter, which is the solid, the liquid, and the gas, right? So let's get down to understanding this properly. So we all know solid. The first point is talking about definite shape. Yes, solids की definite shape होती है. Definitely, let us look at some examples. आपके हाथ में you have a pen in your hand. A solid, yes, has a definite shape, right? If I look at a brick, I imagine a brick, definite shape. Any solid that you can imagine, the water bottle that you have, not the water though inside. Yes, the let's just keep thinking about different examples. You and I also, right? We are also examples of solids, though we can definitely increase and decrease our widths, but yes, we do come under the category of solids. We have a definite shape. Coming to liquid, indefinite shape, definitely, because why आप you have water with you, आपने उसको एक टम्बलर से ग्लास में डाल दिया, आपने एक बड़े पिचर में डाल दिया, आपने एक छोटी सी कटोरी में डाल दिया, so it is not going to stick to one particular shape. It is going to take the shape of the container that it is put into, right? So liquid अपनी shape change कर सकता है according to the vessel that it has been added to. गैस डेफिनेटली बहुत ही इनडेफिनेट शेप है, कोई फिक्स शेप नहीं है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, कोई प्रॉपर पोजीशन होल्ड नहीं करते, दे आर ऑलवेज रोमिंग अराउंड, कोई भी पार्टिकल कहीं भी जा रहा है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, राइट? सो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, liquids have indefinite shape, and gases have indefinite shape. Solids again. Now volume, talking in terms of volume. Solid का जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इतने ज़्यादा स्ट्रांगली पैक्ड है कि उनका उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम उतना ही रहता है, राइट? इट्स गोइंग टू ऑक्यूपाई द सेम स्पेस, सेम मास, सेम मैटर, उतना ही रहेगा. लिक्विड में भी वॉल्यूम उतना ही रहता है. अब अगर आपने एक ग्लास पानी लिया है, वो अगर आप एक कटोरी में डाल रहे हैं, पानी बाहर गिर जाएगा, बट उतना ही रहेगा, तो उतना ही, राइट? आपने एक जग में एक गिलास पानी डाल दिया, पानी का वॉल्यूम उतना ही रहेगा. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. बट गैसेस में वॉल्यूम इनडेफिनेट है. वी कांट रियली मेजर इट आउट बिकॉज the particles are very far away from each other, right? So इसका कोई definite volume नहीं है. Talking about force of attraction, we've discussed in the earlier videos as well. Force of attraction solids में बहुत strong है, right? This is the major reason that the particles of the solids are very tightly and compactly packed, and also is the reason for the above 2 points कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उसका शेप इतना डेफिनेट है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वॉल्यूम डेफिनेट है, डजंट चेंज. सो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इन सॉलिड्स. लिक्विड्स में थोड़ा सा कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट पार्टिकल्स आर also loose and away from each other, but not as loose as in gases, and not as tight or as closely packed in terms of solid. Let's look at the diagram below for help as well. So what is happening here is the solids
बेसिकली दीज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे आर नॉट लेटिंग द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। बट लिक्विड्स में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट थोड़ा सा लूज है, इस वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से डिस्टेंट हैं, दे कैन हैव अ स्पेसर बिटवीन देम टू मूव अराउंड, नॉट वेरी फ्रीली बट अ लिटिल फ्रीली। बट गैसेस में क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, right? They can come close to each other, might be because they're moving around, they might just bounce with each other and come close to each other. But इनका force of attraction बिल्कुल negligible नहीं है, बिल्कुल काम कर रही है. So the gases are all the time roaming around. Okay. Now talking in terms of compressibility. Compress solids को हम compress नहीं कर सकते. आप और मैं अपनी shape दबाने से change नहीं कर देंगे. Unfortunately, but yeah. But also, अगर आप you have again the brick, if you have, you can't change its shape, you can't compress it, right? If you try a lot of pressure on it, वो टूट जाएगी, but उसका shape change नहीं होगा, right? तो क्योंकि उनका force of attraction बहुत strong है. Liquids में it's written cannot be compressed, but I would say it is partially compressible. ऐसा क्यों? आप अगर प्रेशर लगाएंगे, the particles because of the pressure that you are applying will move away from each other. बट एक्चुअली वो पार्टिकल लेवल पे या हम उसे कहें कि वो अपनी शेप पूरी तरह चेंज कर देगा, नॉट दैट, राइट? तो इट इज समवेयर बिटवीन कैन बी कंप्रेस्ड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. आप उसकी शेप चेंज कर भी सकते हैं बट इट गोइंग टू रीगेन दैट शेप, राइट? तो कंप्रेसिबिलिटी इज अ मीडियोकर थिंग इन लिक्विड्स. गैसेस में डेफिनेटली यू कैन कंप्रेस इट, आप प्रेशर लगाएंगे वो या दूसरी जगह जाके वो वहां खुश है, इट्स गोइंग टू सेटल डाउन देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी इज क्वाइट इजी. काइनेटिक एनर्जी, राइट? काइनेटिक एनर्जी के बारे में अभी हमने पहले बात करी थी. काइनेटिक एनर्जी है क्या? एनर्जी ऑफ मोशन. वी ऑल्सो डिस्कस द पार्टिकल्स नेचुरली दे आर ऑलवेज मूविंग. अब सॉलिड्स में क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, प्लस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इफ यू रिमेंबर, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस है वो बहुत ही कम है. तो पार्टिकल्स बिकॉज दे आर बेसिकली इन द नेचर ऑफ मूविंग, तो वो क्या करें, काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ही कम है, उनके पास मूव करने की जगह नहीं है, तो वो अपनी जगह पे बेचारे मूव करते रहते हैं. दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग इन देयर ओन स्पेसेस. So we have covered this next point also. Particles cannot move, rather they vibrate only at their fixed position. वो अपनी location पे ही they keep on moving, vibrating. Liquids में kinetic energy as compared to solids is a little more. Kinetic energy तो है ही naturally, so particles are in the tendency of moving around. So they keep on moving around, but force of attraction भी है, तो उसकी वजह से they collide quickly and come back, collide quickly and come back, or maybe move in that direction and go in some direction, other direction, other direction. फोर्स भी एक्ट कर रहा है उनको एक साथ में रखने का. फिर काइनेटिक एनर्जी भी उनको मूव भी करना है. दे आर नॉट सिटिंग इन दैट वन पर्टिकुलर स्पॉट्स, दे आर मूविंग अराउंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो इसी वजह से पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर, नीचे, आगे पीछे, दे कीप ऑन मूविंग अराउंड. गैसेस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है. अब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यानी कि उनके पास वैसे ही बहुत स्पेस है घूमने के लिए. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है. काइनेटिक एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दे कैन काइनेटिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ विच द पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड वेरी फ्री. तो पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में कभी भी किधर जा सकते. डेंसिटी, राइट? डेंसिटी इज द बेसिकली द एक पर्टिकुलर स्पेस पे पार्टिकल्स कितने अक्यूमुलेट हो पा रहे हैं. सो सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड्स के अंदर है. अगर मैं इतने से एरिया को हम ऑब्जर्व करते हैं इन ऑल द थ्री कंटेनर्स दैट वी हैव, सबसे ज्यादा डेंस सॉलिड के पार्टिकल्स है. वो एक जगह पे ज्यादा क्लस्टर्ड है, इकट्ठे ज्यादा है, बिकॉज ऑफ ऑल द अबव पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल सबसे ज्यादा है. कंप्रेस नहीं कर सकते, आप भी फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल्स उतने उनके नहीं रहेंगे, राइट? काइनेटिक एनर्जी मैक्स मिनिमम है, तो मूवमेंट वैसे ही वो कम कर पा रहे हैं, प्लस अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं. वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स है. सो हाईएस्ट डेंसिटीज इन सॉलिड्स. लिक्विड्स में डेंसिटी है बट सॉलिड से कम है और गैसेस से ज्यादा है. सो डेंसिटी का क्या, डेफिनेटली अगर हम इतने से एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिक्विड्स के अंदर कैसी डेंसिटी, शेप इनडेफिनेट है बट वॉल्यूम है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका कम है, इस वजह से दे आर मूविंग अराउंड. काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा है. तो लिक्विड्स के अंदर डेंसिटी इज प्रेजेंट बट लोअर देन सॉलिड्स. इतने एरिया में पार्टिकल्स हैं बट
कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. बट गैस में अगर हम इतना सा एरिया ऑब्जर्व करें, आई कैन एक्चुअली काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर. सो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो पार्टिकल्स आर वेरी फ्री टू रोम अराउंड हेवा इन एनी डायरेक्शन. तो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हम अगर काउंट करना या देखें अगर हम गैसेस के पार्टिकल्स, सो वी कैन एक्चुअली काउंट देम आउट बिकॉज बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं जो एक जगह पे स्टे कर रहे हैं. And lastly, cannot flow. Solids, definitely no fluidity, no flow possible because of the above all the points. Liquids में flow definitely possible है. It is a fluid because movement है, kinetic energy है, force of attraction कम है, कोई भी वॉल्यूम ले लेता है, फ्लो कर रहा है. गैस डेफिनेट फॉर मैक्सिमम फ्लो गैसेस के अंदर, right? So this was our topic on states of matter. It's quite easy to understand. It was a quick video, right? So please look at the last video in continuation of this as well, which is talking in detail about the effect of temperature on solids, liquids, and gases. What are different latent heats of fusion, vaporization, the different melting points, boiling points, right? And also we will cover up the 5 states of matter as well. We've talked about the 3 here. There are 2 more which we'll be discussing in the next video. So see you there.